We learnt that objects are visible because of the light getting reflected from their surfaces. This reflected light enters our eyes and we see that object. What happens inside the human eye when the light rays enter it? What is it that helps us see the things around us? The human eye is roughly spherical in shape. What we're going to do in this video is understand the different parts of the eye in short, not in extreme detail. Let's begin. The outer layer of the eye is called the cornea. It's white in color and transparent. Transparent? Yes, it means that it allows light to pass through it. It acts like a tough front wall of the eye. What is its function? It protects the interior of the eye from accidents and also does not allow foreign particles to enter the eye. Okay, so this was all about the outer layer of the eye. Let's now talk about the things present inside. Behind the cornea, there's a dark muscular structure called the iris. Iris determines the color of the eye. For instance, when we say that a person has blue eyes, it means that the color of the iris of the person's eye is blue. Now there is a small opening at the center of the iris for the light to enter. Do you know what it's called? It's called the pupil. The iris actually acts like a shutter of a camera. It controls the amount of light entering the eye by enlarging or shrinking and thereby adjusting the size of the pupil. For example, when you focus the light from the torch directly into a person's eye, the iris shrinks. This is because the intensity of light is too much for the eyes to bear. The shrinking iris stops the unwanted light from entering through the pupil. And when it's dark or when there's less light, it expands, allowing more light to enter through the pupil. Okay, what happens next? The light that enters through the pupil falls on the lens kept behind. The lens is a convex lens. What is a convex lens? Convex lens is a lens which is thicker at the center than the edges. It's a converging lens. That is, it focuses all the light at one point. In a normal regular eye, this point is somewhere here on this inner boundary called retina. Why do I say a normal eye? Well, in a defective eye, this point of focus may lie either in front of the retina or behind the retina. We will talk about this defect of eye in our future videos, but first, let's go back to our normal eye where light is focused on the retina. Retina is at the back of the eye and marks the inner layer of the eyeball. Retina contains lots of nerve cells that sense the light. The nerve cells are of two kinds, namely cones, which are sensitive to bright light, and rods, which are sensitive to dim light. The message or sensation is then transferred to the brain along the optic nerve. Okay, let's quickly recap what we learned about the human eye. Human eye has a roughly spherical shape. The outer part of an eye, called the cornea, is a thick white transparent wall which protects the eye from accidents and keeps the foreign particles from entering inside. Behind the cornea, the colorful part of the eye, called the iris, is present. It has a small opening at the center called pupil. Iris controls the light entering through the pupil by contracting and expanding. Behind the pupil, there is a converging lens which focuses the light on retina. Retina consists of two types of nerve cells, namely cones and rods. They transfer the message through the optic nerve. There is a lot of information to digest, so we will stop here and continue to learn more about the eye in the next lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब हम जो है नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ देखेंगे, जिसमें रॉड्स एंड कोन्स के बारे में जो डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया था। तो अब इंटरनल स्ट्रक्चर ही को आगे जो है हम लेकर चलेंगे और रेटिना के पॉइंट ऑफ व्यू से रॉड्स एंड कोन, इन दोनों को हमने देखना है कि ये क्या पार्ट्स हैं रेटिना के और इनका फंक्शन क्या है। तो पहले हम जो है ना इसकी रीडिंग को देख लेते हैं। रीडिंग जो है इस तरह, फिर उसके बाद इसकी हम साइंस टिडबिट्स को भी डिस्कस कर लेंगे। रॉड्स एंड कोन्स। द रेटिना इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर्स, rods and cones.
Rods are sensitive to dim light. They are important for night vision and for seeing black and white. Cones are sensitive to bright light. They let you see color and find detail. रेटिना जो होती है वो दो टाइप्स के फोटो रिसेप्टर पे मुश्तमिल होती है। फोटो रिसेप्टर यानी स्पेशल सेंसिटिव सेल हैं जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, इन्हें कहते हैं रॉड्स एंड कोन्स। रॉड जो होती हैं ये डिम लाइट के हवाले से काम करती हैं। जैसे डिम लाइट होती है सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में, तो ये रॉड्स जो है ना फंक्शन करना शुरू कर देती हैं। जैसे कि रात के वक्त, तारीकी के वक्त और तारीक डार्क रूम में जो है ना ये रॉड्स एक्टिवेट हो जाएंगी और ये काम करना शुरू कर देंगी। दे आर इम्पोर्टेंट फॉर नाइट विजन। जैसा कि मैंने आपको बताया नाइट विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना रॉड्स बहुत अहम है। एंड फॉर सीइंग ब्लैक एंड वाइट, और जब ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को देखना होता है तब भी रॉड्स और रॉड जो होती हैं ये एक्टिव हो रही होती हैं। जबकि जो कॉन्स हैं दे आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। ये ब्राइट लाइट को सेंसिटिव हैं। जैसे कि दिन के वक्त सूरज की रोशनी काफ़ी ज़्यादा होती है, ब्राइट लाइट है, या एक ऐसी जगह पे हम जाएं रात के वक्त जहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनियाँ हैं, तो वहाँ भी जो है ना कॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगी। दे लेट यू सी कलर्स एंड फाइन डिटेल। कॉन जो है इनके ज़रिए हमें जो है ना कलर्स का पता लगता है कि ऑब्जेक्ट डिफरेंट कलर के हैं तो वो किस किस कलर के हैं, इस कलर की पहचान में कौन का बड़ा रोल होता है, बड़ा किरदार होता है इसका। एंड फाइन डिटेल्स, और किसी भी चीज़ के बारे में गहराई से देखना हो, समझना हो, उसकी डिटेल चाहिए हो, तो उसमें भी जो है ना इस साइड पॉइंट ऑफ व्यू से बसारत के हवाले से कौन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसमें पहले हम जो है ना इसी की स्ट्रक्चर को देखते हैं आइज़ की। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिखाई गई है जिसमें आइज़ की कि फिगर हमारी है 3.2 आउटर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। इसमें लेबलिंग में हम देखें तो अपर लेबलिंग में हमें लेफ़्ट पर कॉर्निया लेबल किया हुआ नज़र आ रहा है। क्लियर कवरिंग है लाइक अ ग्लास ट्रांसपेरेंट, दिस इज़ कॉल्ड कॉर्निया। सेकंड ऑन द मिड इज़ अपर आईलिड। ये आँख का ऊपर वाला आईलिड है जिस पे आई लैशेज़ लगी हुई हैं। इससे हम कहते हैं कि ये आईलिड यानी पपूटा, और इस पे ये पलकें हैं आई लैशेज़। फिर इसमें हम देखते हैं कि कॉर्निया में हमें एक स्फेरिकल लाइट कलर में रीजन नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड आइरिस। कलर डिस्क भी से कहते हैं। ये एक डिस्क है, एक गोल प्लेट नुमा स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कलर्ड एंड दिस इज़ कॉल्ड आइरिस। आइरिस के सेंटर में प्यूपल है। प्यूपल एक अपर्चर है, एक सुराख है, एक होल है। जैसे कि गुज़िश्ता लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये वो ओपनिंग है, वो अपर्चर है जो कि ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट को आँख में एडमिट करता है, दाखिल कराता है। इसके ज़रिए लाइट जो है ना वो फाइनली एंटर होती है और फिर लेंस के थ्रू रेटिना पे फोकस हो जाती है। देन स्क्लीरा। स्क्लीरा जो है ये कॉर्निया के अतराफ़ में हमें वाइट कलर में जो रीजन नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड स्क्लीरा, वाइट लेयर है। और फिर इसमें जो आँख का नीचे वाला किनारा है जिल्द का दैट इज़ कॉल्ड लोअर आईलिड्स। ये लोअर आईलिड्स एक थिन स्किन लेयर की फॉर्म में है और इस पर भी जो है ना कम तादाद में बनिस्बत अपर आईलिड के बाल होते हैं, छोटे छोटे हेयर होते हैं। तो ये है आउटर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। नाउ वी डिस्कस दी साइंस टिडबिट्स। साइंस टिडबिट के हवाले से इसमें ये रिलेटेड हैं ह्यूमन आई को। योर आईज हैव द रेजोल्यूशन ऑफ 576 मेगापिक्सल। हमारी आंखें जो हैं 570 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन रखती हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसकी जो देखने की शफाफियत है, क्लैरिटी है, वो 576 मेगापिक्सल है।
बहुत ज़बरदस्त किस्म की यानी कि ये रेजोल्यूशन है ह्यूमन आई की। इसमें हम इसका कंपैरिजन आजकल के आने वाले जदीद जो सेलुलर फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, उससे कर सकते हैं कि उन पे फ्रंट और बैक कैमरा होता है, तो उसकी जो है ना रेजोल्यूशन दी होती है, उसका मेगापिक्सल दिया होता है कि ये 13 मेगापिक्सल है, 18 मेगापिक्सल है, 40 मेगापिक्सल कैमरा है। तो ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन है वो उनसे अभी बहुत ज़्यादा है, 576 मेगापिक्सल। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेजोल्यूशन जो है ना कुदरत ने ह्यूमन आई को प्रोवाइड की है। नंबर 2, योर आइज़ कैन डिस्टिंग्विश ऑलमोस्ट 10 मिलियन कलर्स। 10 मिलियन कलर्स को इंसानी आँख डिस्टिंग्विश कर सकती है। बज़ाहिर तो बेटा हम जानते हैं कि देर आर 7 कलर इन वाइट लाइट। वाइट लाइट या सन लाइट में 7 कलर होते हैं, लेकिन ह्यूमन आई अगर बड़ी डिटेल के साथ कलर के चार्ट बनाए जाएं और डिफरेंट शेड में बनाए जाएं हर कलर के, तो इस तरह जो है ना 10 मिलियन कलर्स भी अगर हों, ये बहुत ज़्यादा तादाद है, इसको भी ह्यूमन आई बड़ी महारत के साथ क्या कर सकती है, इसमें तमीज़ कर सकती है, फ़र्क कर सकती है। नंबर 3 पॉइंट साइंस टिडबिट्स के हवाले से ये है, योर आइज़ कैन डिटेक्ट कैंडल फ्लेम 2.85 किलोमीटर अवे। 2.85 किलोमीटर के फासले पे अगर कोई मोमबत्ती का शोला टिमटिमा रहा है, जल रहा है, तो उस रोशन हुए शोले को भी जो है ना इंसानी आँख इतने फासले से देख सकती है। वेरी अमेजिंग। दिस इंडिकेट कि कितनी दूर तक इंसानी आँख जो है वो बआसानी डिटेक्ट कर सकती है एक ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस को, ख़ास तौर पे जो कि ब्राइट कलर है या जनाब जो है ना वो एक इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम है, लाइट है। एंड 4th पॉइंट ये है कि योर आई कंसिस्ट ऑफ मोर दैन 2 मिलियन वर्किंग पार्ट्स। हमारी आँख, एक आँख जो है उसमें 2 मिलियन से ज़्यादा वर्किंग पार्ट्स होते हैं। ये डिफरेंट सेल की शक्ल में भी तकरीबन होते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बच्चों ये डिस्कस किया हमने साइंस टिडबिट के हवाले से। तो उम्मीद है कि आपको ये साइंस टिडबिट्स बहुत पसंद आई होंगी और बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको आपने याद रखना है। और इस तरह ये जो था टॉपिक ह्यूमन आई के बारे में हमने इसको डिटेल से देख लिया। अब जो है ना मज़ीद कुछ जो है ना मालूमात डिस्कस कर लेते हैं। आँखों के हवाले से ही है, आइज़ आर प्राइसलेस एंड डिज़र्व टू बी ट्रीटेड विद केयर एंड रिस्पेक्ट। आँखें कुदरत का अनमोल अतिया हैं, अनमोल की कोई कीमत नहीं है, प्राइसलेस हैं। एंड डिज़र्व टू बी ट्रीटेड विद केयर एंड रिस्पेक्ट, कि इनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए। आइज़ आर डैमेज बाई, आँखों को नुकसान पहुँच सकता है इंजरीज से, कोई चोट लग जाए आँखों में से आँखों को नुकसान पहुँच सकता है, बेनाई मुतासिर हो सकती है। अनबैलेंस्ड डाइट एंड स्मोकिंग, ये फैक्टर भी आँखों पे बुरा असर अंदाज होता है, बुरा असर डालता है। सन रेज एंड सोलर इक्लिप्स, सूरज ग्रहण के वक्त अगर सूरज को देखा जाए तो आँखें इससे मुतासिर हो सकती हैं, बेनाई जा सकती है। और डायरेक्ट सन रेज़ को देखा जाए तब भी आम दिनों में। लेज़र पॉइंटर का जो है ना इस्तेमाल किया जाए और आँखों में जनाब जो है लेज़र पॉइंटर को पॉइंट आउट किया जाए, इसकी रोशनी डाली जाए, तब भी आँखों को नुकसान पहुँचता है। और लास्ट जो बड़ा डैमेजिंग काजिंग फैक्टर है वो बीमारियाँ हैं, डिजीज़ हैं, लाइक डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। ये दो जो है ना डिजीज़, शुगर की बीमारी जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं वो, और जो हाई ब्लड प्रेशर है वो भी हमारी आँखों को मुतासिर करता है बुरे तरीके से, आहिस्ता आहिस्ता। दैन देयर इज़ अनदर बॉक्स, इसमें जो है ना बड़ी एक और मुफीद मालूमात डिस्कस की गई है कि आँखों की जो तकलीफ़ है, आई स्ट्रेन इज़ बैड फॉर द आइज़, आँखों के लिए बुरा है। आँखों पे दबाव, आँखों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, बहुत देर तक जो है ना मोबाइल फ़ोन देखना, लैपटॉप देखना, या बहुत देर तक जो है ना माइक्रोस्कोप, जिसको इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप होती है, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन उसका जो है ना वो बहुत ब्राइट होता है, लाइट होती है उसकी, तो देर तक जो है आँखें वहाँ पे रखना, फोकस करना, ये इससे आँखों पे जो है ना दबाव आता है,
तकलीफ़ का एहसास होता है, दैट इज़ कॉल्ड आई स्ट्रेन, स्पेशली फॉर डेवलपिंग किड्स। जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं, आपकी उम्र के बच्चे हैं, आपसे छोटे बच्चे जो हैं 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास के बच्चे हो गए, इससे पहले के बच्चे जो हो गए जिन्हें हम टोडलर कहते हैं, उनके लिए डेवलपिंग आई किड्स जो होते हैं, तकरीबन आप कह लें कि ये शीर ख्वार के ज़माने से लेकर आप इसको चाइल्डहुड तक के बच्चों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें बचपन आता है, तकरीबन 7-8 साल की उम्र तक के बच्चे इससे मुतासिर होते हैं। आइज़ आर स्ट्रेन बाई, आँखों को जो है ना तकलीफ़ पहुँचती है, दबाव इसका शिकार हो सकती है। फोकसिंग ऑन स्क्रीन फॉर आवर्स, जैसा कि बताया गया आपको कि कई घंटे तक स्क्रीन को देखना, लैपटॉप मोबाइल या दूसरी चीज़ों से। रीडिंग इन डिम लाइट में रीड करना, अंधेरे में रीड करना, रोशनी ज़्यादा ना हो तो उस हालत में पढ़ना। वाइल ट्रैवलिंग करते वक्त भी, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारी आंखें सही तरीके से उस बुक पे पेज पे फोकस नहीं कर पाएंगी, स्ट्रेन का शिकार हो जाएंगी। तो सफ़र के दौरान भी जो है ना रीडिंग से गुरेज़ करना चाहिए, मुताले से गुरेज़ करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूजिंग अ ब्राइट स्क्रीन इन अ डिम रूम, ख़ास तौर पे रात के वक्त या जनाब अंधेरे कमरे में अंधेरा हुआ है और जो है ना मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसमें भी नुकसानदेह है। यूजिंग ग्लासेस ऑफ रॉन्ग नंबर, गलत नंबर के चश्मे इस्तेमाल करना, अगर आई साइट वीक है और चश्मे का नंबर सही नहीं है तब भी आँखों पर स्ट्रेस आ सकता है। रबिंग यूर आइज़ को जो है ना मलना हाथों से, उंगली से। एंड लुक एट ऑब्जेक्ट फ्राम टू क्लोज, और बहुत करीब से जाके जो है ना ऑब्जेक्ट को देखना, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को, स्पेशली टेलीविज़न को, ये भी आंखों पे स्ट्रेन डालता है। तो बेटा ये था यहाँ तक का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट सेंस ऑर्गन को डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।